Hello everyone. I'll resume to this last week current affairs discussions. Okay, first news is Annamalai Tiger Reserve. So while reading this point, you have to remember ki what is the area, what districts he covered. Okay, apart from that, which state is covered. Okay, it is the Annamalai Western Ghat completely, and they are covered two districts. One is a Pollachi and one is a Coimbatore, Tamil Nadu mein. And it is in the border of the Kerala Reserve of Laika, Parambikulam, Chennar, Anna, Eraviculam. Okay, you don't not need to remember this thing, this area, that 1400 not needed. Okay, neither a square kilometer. Okay, this also don't need to remember. Okay, terraces, hills, valleys, and grasslands are there. Okay, apart from the heritage. Okay, what kind of heritage we have? Kalyan Solar, grass hills, and the Manjampatti Valley, okay, shortlisted by the UNESCO. Why you need to remember? Because these are the shortlisted by the UNESCO World Heritage as well. Next is the tribals. Okay, here is the most important two things. One is a district. Okay, two district covered Tamil Nadu state, and what kind of tribals are there living in their area? Kadars, Muduvas, Malasars, Mallai, Eravallai, and Pulayars. Okay, so these tribals are situated over there, and you have to remember ki this tribals names you can add this into your anthropology or your tribal part as well. Okay, as a case studies. Acha, vegetations. What kind of vegetations? And firstly, when it's a upper or semi-green forest, and it's a mid lower part mein, it's a moist and dry deciduous. Okay, there are three kind of latitude or three kind of mixed vegetations we can see. Okay, and in the high altitude there's a solar forest, grassland, and marshes. Okay, flora, there are 2500 plus floras over there, including this known orchids, kurinji. You no need to remember this name, but just remember this is an important space of the flora and fauna. You have to remember leopard, okay, jungle cat, tiger, elephant, it's okay, and jackals. Okay, these three, especially leopards and the jungle cats. Next is a Indian grey wolf. Okay, why it is in the news? Because currently they are trying to elevate the situation or that number of the population of the wolf. That's why it's a habitation at the dry scrub land, grassland, and the farmland. So these three kind of areas, they are basically habitated. Okay, activity is a nocturnal, most important nocturnal hai. Though in the prelims they will not going to ask the features or any kind of this thing, but still you have to read. Okay, small packs, okay, quieter than the other wolf. Okay, that's okay. And range is Israel to India. It's entirely Israel, just Arabic Israel to India. Itna part they are covering. Okay. Lack thick coat due to the warm climate. Why lack thick coat? Okay, why not thin? Because they are situated in the warm area, still is a thick, because they wanted to just heat. That thick coat is a save them to burn their skin or their entire part. In the Arab country, you can see one thing: people are wearing the full sleeves clothes because they don't wanted to expose of the heat. That's why they are evolved like a thick coat, ki that's save them from the heat or that's warm area. That's why when I read this thing कि मैंने ये चीज रिसर्च किया कि थिक कोट क्यों होना चाहिए गर्मी में, क्योंकि हीट को भी अंदर ना आने दे और उनको प्रोटेक्ट करे. That's why in the cold area also you can see कि those animals and the humans also, they are into the high latitude area or the cold area.
दे ऑल्सो हैव द थिक स्किन. क्यों? क्योंकि ठंडा या गर्मी उनको प्रोटेक्ट करता है इससे. क्योंकि हम लोग अगर इजीली उस जगह पे जाएंगे अरब कंट्रीज में, तो हम लोगों को ज़्यादा जलने का या इफेक्ट होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. दैट्स वाई. एनीवे, conservations. Okay, IUCN, I'm going to explain the IUCN in the next this Saturdays. Okay, कि IUCN and what is the red list. It has a huge, मतलब it will take 10 to 15 minutes, so I'll cover these things. Okay, listed, concern. Okay, endangered, located. Endangered में आता है कि you guys know there is a 7-8 dimension. Endangered, then endangered, okay, they're critically endangered, okay, extinct. तो इसलिए this is a endangered appendix 1 and इंडिया में schedule 1 में आता है ये WPA के 1972 के रूल्स के हिसाब से. Again, threats. Okay, feral dogs से threat है. Okay, this thing, because from this area, from where they are situated current now, government wanted to, मतलब जो feral dogs है उनको हटाने की कोशिश कर रहा है कि feral dogs की वजह से बहुत सारे grey wolf का मौत हो गया है recently, कुछ टाइम पहले. That's why these things are really, मतलब you have, that's why this is into the news as well. Okay, canine distemper and genetic disease. तो ये दोनों चीज याद रखना. ठीक है, कैनन डिस्टेम्पर्ड होता है. ओके, देन उसके बाद रिस्पॉन्स. वैक्सीनेस proposed but hard to scale. हार्ड टू स्केल मीन्स मतलब इट्स वेरी मच, मतलब जब इनको रेस्पॉन्ड, ये लोग प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर हार्ड टू स्केल. ये लोग मतलब स्केल नहीं कर पा रहे, अपने जो ब्रीडिंग है उनको बढ़ा नहीं पा रहे हैं. ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है करेंटली. कदम वाली ग्रासलैंड. कदम वाली ग्रासलैंड ऑल्सो इनटू द न्यूज. ये हिंदू में ही आया है इस बार. ठीक है, इंद्रपुर पुणे में इट इज सिचुएटेड. ठीक है, स्पीसीज प्रेजेंट इंडियन ग्रे उल्फ. ओके, अभी हम लोगों ने बात किया. ठीक है, बंगाल फॉक्स, हाइना एंड ब्राह्मिन्स कैट्स. ओके, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्पेशली हाइना एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कल्चरली इट्स लोकेटेड अ शार्प हेडेड को एग्जिस्ट पीसफुली विद अ वुल्व्स. सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो लोकेशंस जो है कल्चरली शार्प हेडेड को एग्जिस्ट पीसफुली विद द वुल्फ के साथ, बाकी के जो एनिमल्स है वो प्रॉपरली को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, दैट. Next is PL-15 missile. PL-15 missile, why it was in the news last week? Last week also. That is a missile of China, and that was found in Punjab, and every of the other countries wanted the remnants of that missile so that they can test and they can recognize the technology that they are using. You are partially right and partially wrong. Why I'm telling you कि yeah, it is found in the Punjab, and most importantly China using same missile and their efficiency, that what they are using for themselves is much better than what they are मतलब exporting in the other countries. ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जो वो यूज़ करते हैं वो 200 to 300 किलोमीटर्स है, बट जो वो लोगों ने एक्सपोर्ट किया है वो 145 किलोमीटर्स रेंज है. तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ग्लिच दिखा गया है कि वो अपने लिए एक हाई इक्विप्ड मिसाइल्स या जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं मिसाइल्स, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट जो वो एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज नॉट मतलब इन दैट लेवल. तो इसीलिए इसके लिए चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है. एंड रिसेंटली लास्ट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे क्या हुआ था, चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, एविएशन स्टॉक मार्केट, वो सडनली गिर गया है क्योंकि मतलब जो कंट्रीज उनसे खरीदते हैं डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स, वो लोगों ने मना कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ऑल्सो. इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. PL-15 क्या है, उसका रेंज क्या है, क्योंकि चाइना ने ये चीज़
इंक्रीज किया है, दैट्स व्हाई, क्योंकि इंडिया ने मैक्सिमम इसी मिसाइल को गिराया है मार के, तो इसलिए ठीक है। वेयर हेड इट 20 to 25 किलोमीटर फ्रेगमेंटेशंस, ओके। गाइडलाइंस क्या है, उस गाइडलाइंस है इंटरनल, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैमिंग को एंड हाई एक्यूरेट रेसी को ये करने के लिए एंड जैमिंग को ये करने के लिए, कोई अगर कहीं पर जैमर्स हो उसको कैटर करने के लिए ये मिसाइल को बनाया गया था, बट वो भी फेल हो गया जब पाकिस्तान ने वो मिसाइल हम पे छोड़ा, तो इसलिए बस इतना है कि चाइना मेड, अच्छा कैसिक, ये याद रखना, ठीक है, ये जरूर याद रखना कि मेड बाय द कैसिक, एंड दिस इज कंप्लीटली अ प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन, ओके। कास्ट सेंसस ये प्रीलिम प्लस मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। And one more thing is, this is very important in paper 2 anthropology optional and the sociology optional as well, okay, क्योंकि यहाँ पे श्रीनिवास ने कास्ट सेंसस एंड कास्ट सिस्टम के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, ठीक है, किसी के पास टाइम हो तो वो जरूर पढ़ना। तो क्या है कि मतलब हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा कलेक्ट करता है कास्ट बेस्ड पे, उसको ही कास्ट सेंसस बोला जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले इसको तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले 81 to 1931 तक पहले कास्ट सेंसस ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस कास्ट सेंसस ड्यूरिंग 1881 to 1931। देन उसके बाद 1941 में भी डेटा कलेक्शन हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट 1951 में, शायद येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे की ही शायद न्यूज में थी ये, ठीक है, ओनली SC ST के डेटा जो कलेक्शन था वो रिकॉर्ड किया गया था। एंड रिसेंटली 2001 में भी अटेम्प्ट किया गया है क्लास प्लस सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो फ्लॉडेड, ओके। सो दैट्स वाई ये ऑलरेडी हो चुका है। एंड लास्ट 3 years बैक 2023 में बिहार, तमिलनाडु एंड तेलंगाना ने भी कास्ट सेंसस किया है, ठीक है। येस्टरडे समवन वाज आस्किंग मी कि अगर यूनियन लिस्ट में है 69 में तो किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, उसके लिए बिहार गवर्नमेंट के ऊपर केस चला था। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकता है, ठीक है, खुद के मतलब वो उनके पास वो अथॉरिटी है, ठीक है, एंड वो दे कैन टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। तो दैट्स वाई, तो इसीलिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस गया था, क्योंकि ही आस्क्ड मी शायद यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे। इसका हिस्ट्री याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में कास्ट सेंसस का जो डेवलपमेंट है, किस तरह से हमारे इंडिया में कास्ट सेंसस आया, वो डेफिनेटली तब लिखा जाएगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इट्स इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। एंड देन बीच में बंद हो गया था। एंड अगेन हाँ, नीड फॉर द कास्ट सेंसस, करेंटली क्यों जरूरत पड़ी नीड की, ठीक है। एक तो डेटा गैप, अच्छा वन मोर थिंग इज कि ये PDF मैं बोल दूंगी अवेलेबल करने के लिए, ठीक है। एंड सैटरडे को, दिस सैटरडे को जो इस वीक का करंट अफेयर्स है वो मैं सैटरडे 3:30 to 4:30 ले लूंगी, ठीक है। वन मोर थिंग इज जो हिंदू में है उसके अलावा में जो अलग अलग न्यूज पेपर्स में है, क्योंकि यहाँ पे जो हैदराबाद का न्यूज पेपर है उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज है दोज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई ट्राई टू ऐड दोस इनटू द वीकली करंट अफेयर्स एज वेल। जो अगर मैं मान लो कि एवरीडे के डिस्कशन में अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ, अगर पूरा नहीं होता है तो भी मैं उसको वीकली में कवर करूंगी, ठीक है। नीड टू, हाँ क्यों, डेटा गैप मीन्स नो रिलायबल OBC डेटा। ये बात मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कैसे। देयर आर वन कास्ट कॉल्ड मीना, इट्स प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान both, okay. So Rajasthan it is SC, they are belonging to the SC, and Madhya Pradesh they are belonging to the OBC caste. So क्या हो रहा है, when they are registering themselves as any kind of government examination, currently आप लोग देख ही रहे हो UPSC में भी there are n number of problems created, ठीक है। कोई फ्रॉड OBC, फ्रॉड SC, फ्रॉड ST सर्टिफिकेट बना के, तो दैट्स वाई ये चीज वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या काम आएगा। तो दोस हु आर बिलोंग्स टू द राजस्थान, ठीक है, देयर बिलोंग्स मतलब देयर एंसेस्टर्स बिलोंग टू द राजस्थान, दे आर SC and दो आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे आर OBCs, ठीक है। सो उसमें क्या किया जाएगा, हाउ दे विल रिकॉग्नाइज कि इफ आई एम फ्रॉम द मध्य प्रदेश, ओके, एंड आई एम, माई सरनेम इज मीना, एंड माई फादर और माई ग्रैंडफादर स्टेड इन राजस्थान फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है।
तो फिर देन आई कैन क्लेम माई सेल्फ ना कि मैं SC हूँ, मैं तो MP से हूँ ही नहीं, आई एम फ्रॉम द राजस्थान, बट वो नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर जो, इसीलिए ये कास्ट सेंसस किया जा रहा है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है और उसका कास्ट आइडेंटिटी क्या है, इसको कीनली ऑब्जर्व किया जाए। और जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं सारे एग्जाम, अगर UPSC में हो सकता है तो अलग स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम में तो हो ही सकता है, तो उसको भी कैटर कर पाए गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई। ठीक है, ACCC error, okay, 40 lakhs caste entered due to the open end fund। वही मैंने बोला, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज द ऑफिसर, शी विल गोइंग टू साइन ऑन माई पेपर, मैं उसको पैसे दे के इजीली करवा सकती हूँ। तो वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, नॉट इवन अभी से नहीं, बहुत सालों से। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे जनरल भी अपने आप को OBC या SC कैटेगरी में ले आते हैं भाई, इन बंगाल ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई आई सॉ कि ही इज ब्राह्मण, दैट पर्सन इज बिलोंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी, बट उनकी कास्ट में OBC या SC लिखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम डॉक्टर्स। ठीक है, सो या दिस फ्रॉड इज हैपनिंग सिंस मतलब एजेस नाउ। पॉलिसी नीडेड, रिवाइज रिजर्वेशन, डेफिनेटली। एक टाइम पे तो आई फील लाइक कि जो जनरल है 10 साल बाद उनको रिजर्वेशन मांगना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सब अपने आप को रिजर्वेशन मांग रहे हैं, एंड वो लास्ट कल या परसों के हिंदू में ही था, ठीक है, कास्ट सेंसस में, कि जिस तरह से इतना कोटा और इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, कल जनरली जाके बोलेंगे कि भाई हम वी आर 30% ओनली, गिव अस द रिजर्वेशन। सो कुछ कर नहीं सकते। सो रिवाइज रिजर्वेशन, ओके। जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये याद रखना, रिकमेंडेड OBC सब कैटेगराइज। ठीक है, कमीशन का नाम याद रखना फॉर प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव, ओके, प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव, ओके। इम्प्रूव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशंस, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन हर एक कास्ट का होना चाहिए, तब जाके ये चीज होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत अच्छे से जरूरत है। कंसर्न, रीइंफोर्स आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीइंफोर्स आइडेंटिटी कार्ड को, जो हिडन कास्टलेस सोसाइटी है ना, उसको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोगों को याद होगा कि टीना दा भी जब सिलेक्शन हुई थी, तो उनका SC को लेके, क्योंकि उनके पेरेंट्स वर कमिंग फ्रॉम सो वेल्दी बैकग्राउंड, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी, तो वहाँ पे ये चीज़ कि में हिंडर द कास्टलेस सोसाइटी विजन। तो कास्टलेस सोसाइटी विजन को हिंडर करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर कास्टलेस सोसाइटी बनाना है तो कास्ट जानना भी जरूरी होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं जानती हूँ कि ठीक है यहाँ पे ये कास्ट कम्युनिटी है, एंड वो लोग मतलब एक होता है ना, उन्होंने अपना ग्रुप या कुनफा बना लिया है, तो उसको क्या करेंगे, दूसरे कास्ट के या दूसरे जाति के लोगों को रीइंफोर्स, मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरीज है, वहां पे क्या करा जा सकता है कि अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को भी, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस में सिर्फ मेन आर पार्टिसिपेटिंग, नॉट वुमेन आर दैट मच इन्वॉल्व, तो वुमेन्स को लिया कि वहां की जो इक्विलिब्रियम है उसको बैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। सेम जहाँ पे जनरल सिर्फ है, फॉर एग्जाम्पल उन्हीं का डोमिनेशन है कि यहाँ पे तो सिर्फ ब्राह्मण्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ ये कास्ट रहता है, तो वहां पे उसको बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। मतलब इनफैक्ट इन द मतलब big cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, okay, they also come and ask you what is your caste, acha you are Brahman, oh acha, so then if he is belonging to the same na, then people are started bitching about the other caste as well. Apart from that, they are working in a very good MNCs or in a very मतलब they are holding a very good positions on their own, but still these things are happening. कोई MP से आता है तो कोई बिहार से आता है, तो वो चीज की अच्छा ये चीज तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वहां पे वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए भी हमें इस चीज की वो कास्टलेस सोसाइटी बनाने की जरूरत है। तो जहाँ पे एक कास्ट की सिर्फ डोमिनेशन ना हो, जैसे पहले क्या होता था, ब्राह्मण्स की डोमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से लोग संस्कृताइजेशन में शिफ्ट हो रहे थे, तो वो चीज को कैटर करने की जरूरत है। डोमिनेंस, ओके, मैंने बोला ओबीसी ग्रुप का बेगर ओबीसी ग्रुप कुड ओवरशैडो द स्मॉलर वन, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट में इतना सारा परसेंट है जहाँ ओबीसी ग्रुप का, तो अगर हम लोग इसको एक्यूमुलेट करते हैं ऑल इंडिया में तो ओबीसी का परसेंटेज, इसीलिए यूपीएससी में भी देखना जनरल के सेम उन लोगों की कट ऑफ्स होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसको भी सब कैटेगराइज करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स,
ओके, पॉलिटिक्स में वोट बैंक को एक्सप्लॉयटेशंस करने की ज़रूरत है, वो एक्सप्लॉयटेशन रिस्क को कम करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहीं कहीं कास्ट बेस्ड प्रमोशंस होती है कि कहीं पे एससी ज़्यादा है, एसटी ज़्यादा है, जनरल ज़्यादा है, तो उस तरह के मतलब कैंडिडेट्स को ही खड़ा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर 60% ऑफ द एससी कम्युनिटी है, वहाँ पे किसी 80% को खड़ा किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो वोट उनको मिल जाए, उसको भी मतलब कैटर करने की ज़रूरत है। लीगल लिमिट्स, ओके, आर्टिकल 340 अलाउड द बैकवर्ड क्लास आईडी, नॉट कास्ट सेंसस। ओके, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आर्टिकल 340 अलाउ करता है बैकवर्ड क्लास आईडी को, ठीक है, नॉट कास्ट सेंसस को। बैकवर्ड क्लास आईडी को वो अलाउ करता है बट कास्ट सेंसस को नहीं। तो इस वजह से अगर मैं बैकवर्ड क्लास हूँ और अगर मेरे आईडी में वो लिखा होगा तो डेफिनेटली जहाँ पे एडवांटेज मिलना होगा वहाँ पे मिल सकता है। बहुत लोग ऐसे भी है जिनको सचमुच ज़रूरत है उस कार्ड की बट उनके पास वो नहीं है, तो इस चीज के लिए भी ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिजर्वेशन कैप, ओके, मेनी चेंजेस, 50% लिमिट, इंदिरा शाहानी 1992। तो ये जो 50% कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अभी 50% से ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि जनरल को 50% रिजर्वेशन मिलेगा और रेस्ट बाकी के मिला के 50% रिजर्वेशन कैटेगरी होगी, बट ये कैप भी अभी मेंशन नहीं हो रहा है या मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशंस, नो स्टैंडर्ड लिस्ट, ओके, कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है, तो ओबीसी लिस्ट डिफर द अक्रॉस स्टेटेड, ठीक है, स्टैंडर्ड लिस्ट होना जरूरी है क्योंकि अलग अलग ओबीसी के अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग पेइंग स्केल है, स्टेट पीसीएस के में भी या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी उसको कैटर करने की जरूरत है, ठीक है। मिस रिपोर्टिंग, फॉल्स लोअर कास्ट क्लेम, जो मैंने अभी बोला कि दोज हु आर रियली वांटेड दिस रिजर्वेशन उनके पास वो बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से अंबेडकर ने इस जो बोलता है ना कि रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए थे और उन्होंने ये चीज कहा था कि जब इक्वालिटी आ जाएगी तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी को हटा दिया जाएगा, ठीक है, बट ये कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक मजदूर हूं और मेरा बच्चा भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आगे जाके, क्योंकि वो उतना एडुकेट ही नहीं होगा, वो 10th तक ही पास नहीं कर सकता, स्कूल के कंडीशंस ही वैसे नहीं है, तो उसको प्रमोशंस की जरूरत है, उसको वो कास्ट कार्ड की जरूरत है, बट वहां तक वो चीज पहुंचती नहीं है जहां तक एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी अपने आप को हायर पोजिशन में है वही लोग उस प्रॉब्लम का बेनिफिट्स उठाते हैं। मिसक्लासिफिकेशन, सिमिलर कास्ट नेम्स कॉज्ड अ डिफीट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मीना वाला बात कि राजस्थान में एसटी है और मध्य प्रदेश में वो सेम ही कास्ट है, वो ओबीसी है। वीक कैपेसिटी, सेंसस लैक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म सेंसस अगर ये एक वीक कैपेसिटी है, ये इसको भी मतलब काम, अगर सेंसस होता है, ठीक है, तो फिर ये जो वीक मैकेनिज्म है इसको भी कैटर करने की जरूरत है। मान लो कि इसमें भी अगर फ्रॉड हुआ तो फिर कल मतलब फॉर इतनी बड़ी एक स्टेप की जरूर मतलब क्यों किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई। और इसका सबसे बड़ा एक चीज और है जो मैं कंसर्न में बताई थी पहले भी, कि जो डेटा है हमारे पास उसका रहते हुए भी हम लोग चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कास्ट सेंसस आने से वो चीजें हो जाएगी प्रॉब्लम दूर, वो भी कंसर्न में लिखना, मतलब दैट पॉइंट विल कम अंडर द कंसर्न। अच्छा, नाउ इंडस वाटर ट्रीटी, दिस इज मतलब खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में किस तरह से आ सकता है या मेंस पर्सपेक्टिव में किस तरह से आ सकता है, ठीक है। अभी मेंस पर्सपेक्टिव में दिस ईयर आई कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को एकदम रिजेक्ट कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कुछ भी हो जाए, कोई भी इंटरवेन करे, हम लोग इसको हटाएंगे अब नहीं,
ठीक है, और उसके लिए भी जो डैम्स की बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है पानी को रोकने के लिए, वो 2-3 साल में इंडियन गवर्नमेंट कर देंगी, जो मतलब दिख रहा है जिस तरह से चीज़ें चल रही है। अच्छा, कल या परसों का एक छोटा सा न्यूज़ था, आप लोगों ने देखा होगा कि अमित शाह ने ये बोला है कि जितने भी बांग्लादेशीज हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स, उनको 30 डेज के अंदर उठा के उनके देश में भेजो, किसी भी तरह भेजो, बट भेजो। और सारे स्टेट को स्ट्रिक्टली मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा, उनको उठाओ और उनको भेजो 30 डेज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर वन मोर थ्रेट, मतलब वो हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि 3.5 फ्रंट वॉर फ्रॉम द बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से भी, क्योंकि मैंने कल ही उसको लेके एक शॉर्ट बनाई थी, बांग्लादेश से भी हमला हो सकती है, पाकिस्तान से भी, एंड चाइना से। अलोंग विद दैट जो बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं स्लीपर सेल्स, दे विल गोइंग एक्टिव, एंड देन वो लोग राइट्स करा सकते हैं बड़े बड़े सिटीज में, जो एक बहुत बड़ा इंटरनल थ्रेट है। उन्होंने सीधा कल या परसों बोला है ये बात, कल मॉर्निंग में या परसों शाम को उन्होंने बोला सबको उठाओ और बांग्लादेश भेजो, एंड वो मे बी 1-2 दिन के एडिटोरियल्स में भी और न्यूज में आ जाएगा, तो होपफुली। तो इसलिए तो हाँ, तो इंडस वाटर ट्रीटी ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक, वन मोर थिंग याद रखना, इसको इंटरविन वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें जो नेगोशिएशंस है, या पहले भी कोई भी अगर क्लैश होता था तो वर्ल्ड बैंक इंटरविन करता था। वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान की जो ट्रीटी है, दिस इज बायलैटरल, उसमें वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? Why they wanted to intervene? क्योंकि जो अनबायस्ड रहे, इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे। तो दिस अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक बाय द वर्ल्ड बैंक इन 1960। एंश्योरिंग ईयर याद रखना, दो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की मतलब है नहीं उतना ज्यादा, बट मेंस में आ सकता है डेफिनेटली। एंश्योरिंग इक्विटेबल एंड अ पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, पीसफुल जो हम लोग की वाटर है उसको पीसफुली डिवाइड करने के लिए ये ट्रीटी क्रिएट किया गया था। ठीक है, रिवर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द ट्रीटी, वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब को पाकिस्तान को मिला था, एंड रावी, बैस एंड सतलज को मिला था। इनके ट्रिब्यूटरीज आगे आके मैं बोलती हूँ। ठीक है, सबसे मजेदार बात है, इनको इंडिविजुअली प्रीलिम्स के लिए तैयार करना। इंडस वाटर ट्रीटी नहीं आएगा, इसका रूट कहाँ से है, कहाँ तक जाता है, वे कहाँ है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबके 6 ऑफ देम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि पार्टीशन के टाइम में जो बेसिन में स्प्लिट होना था, एंड पाकिस्तान क्योंकि लोअर पार्ट में रह रहा था, तो उनको वाटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो क्या होगा उनका? ठीक है, क्योंकि सारे ही रिवर्स मोस्टली इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो तब दैट्स मतलब ये नीड्स की वजह से ये ट्रीटी शुरू हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट बिगन क्योंकि इंडिया रिटायर कंट्रोल ओवर द की मतलब हार्डवर्क की हम लोग ही सारी रखेंगे, एंड पाकिस्तान मतलब को इरिगेशन की प्रॉब्लम हो सकती थी, तो ये एक प्रॉब्लम था। वर्ल्ड बैंक मेडिटेशन किया, ठीक है, मीडिएशन किया, एंड ट्रीटी साइन बाय द 1960 जवाहरलाल नेहरू इंडिया से मोहम्मद अयूब, ये नाम याद रखना। ओके, एंड WAB लिफ, ओके, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये तीनों नाम याद रखना फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन 1960, एंड देन तीनों जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब, एंड देन WAB लिफ। ओके, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। डेट था 1 अप्रैल, डेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर याद रखना 1960। जियोग्राफिकल फ्लो ऑफ रिवर, इंडस रिवर, okay, originated in Tibet, flow through the Ladakh, India into the Pakistan. ठीक है, झेलम एंड चेनाब पास थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, वन थिंग, प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि विच रिवर पास थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर, और वहां पे एक एक, तो डेफिनेटली ये दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्टली। ओके, Ravi, Beas and Satluj. Okay. You wanted to leave? ठीक है, Ravi, Beas and Satluj flow through Punjab. ओके, पंजाब से फ्लो होता है, याद रखना ये। ठीक है, ये तीनों क्योंकि वो पंजाब की मेन रिवर्स हैं। ओके, एंड देन इनटू गोइंग इनटू द पाकिस्तान। ठीक है, इसके सारे ट्रिब्यूटरीज मैं फिर से बोल रही हूँ, याद रखना, सारे इंडिविजुअली तैयार करना, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
तापी बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट, जो न्यू सोर्स है मतलब हिंदू का, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र साइन द MOU, ओके, टू जॉइंटली इम्प्लीमेंट द तापी बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट। MOU साइन क्या है, क्योंकि ये काफी दिन से चल रहा था, ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था कि क्या होगा, उसका बेसिन का पानी किधर जाएगा, तो काफी टाइम से दोनों भी लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कि क्या होगा, किसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो फाइनली इट्स रिजॉल्व, ओके। पर्पस इज अ divert water from the Tapi river, address drinking water needs in the north east Maharashtra। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो वाटर क्राइसिस है उसको कैटर करने के लिए ये MOU साइन हुआ है। सपोर्ट इरिगेशन इन द साउदर्न एंड द साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एज वेल। सबसे ज्यादा कि तापी रिवर क्या है, उसका ट्रिब्यूटरीज क्या है, कहाँ से वो शुरू हुआ है, ठीक है, ये तापी के ऊपर, ओके। हाँ, की फैक्ट्स ऑल्सो ना, तापी लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनिक फीचर्स, वन ऑफ द ओनली 3 मेजर रिवर्स, ओके, पेनिनसुलर इंडिया फ्लोइंग जो मतलब वेस्टवर्ड्स, ओके, एक नर्मदा, एक माही और एक तापी। ये बात याद रखना, ठीक है, कि ईस्ट में नहीं फ्लो करते, क्योंकि मैक्सिमम जो पेनिनसुलर के रिवर्स हैं वो सारे ईस्ट में फ्लो करते हैं, बट दिस 3 आर वेस्ट में फ्लो करते हैं, मतलब इधर, ठीक है, इस साइड पे। तो ये बहुत यूनिक एक फीचर्स है, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओरिजिन नियर द मुलाटिया इन बेटल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ओके। आउटफ्लो ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, क्योंकि मैंने बोला वेस्ट साइड पे गल्फ ऑफ कम्बे, ओके, खंबात में, एंड बेसिन कवरेज सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग इंटर स्टेट रिवर बेसिन, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है तो मे बी ना पूछे, क्योंकि फर्स्ट होता तो पूछता, ठीक है, बट इंटरस्टेट रिवर बेसिन इन इंडिया, मेजर कवरेज इन महाराष्ट्र, ऑल्सो फ्लोज द मध्य प्रदेश एंड एज वेल एज द गुजरात, क्योंकि गुजरात होके ही खंबात में गिरता है, सो दैट्स वाई। हाँ, मेजर ट्रिब्यूटरी पूर्णा रिवर, ओके। अच्छा, ट्रिब्यूटरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक बार तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है, कि कौन सा वेस्टर्न साइड, कौन सा ईस्टर्न साइड्स है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक मैप डालना चाहिए था। सो नेक्स्ट बार से जो भी मैप वाली चीज होगी ना, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द मैप एज वेल, ठीक है, कि मैं तुम लोग को उसको अच्छे से, एक गोमिया रिवर, एक बार पूर्णा रिवर ऑरिजिनेटेड इन द ग्वाल घाट हिल्स, ओके, जॉइंट तापी फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेफ्ट मीन इधर और राइट मीन्स इधर, ओके, इफ दिस इज अ ओरिजिनेट पॉइंट, ओके, एंड इफ यहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे जा रहा है इस साइड पे, तो अगर तो इसका फ्लो के हिसाब से इसका राइट बैंक ये होगा, राइट बैंक, ओके, और ये इसका लेफ्ट बैंक होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये लेफ्ट बैंक है, ठीक है। गिरना रिवर ऑरिजिनेटेड केम पीक वेस्टर्न घाट नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, एंड गोमिया रिवर इज ऑरिजिनेटेड इन सतपुरा रेंज, ये याद रखना, सतपुरा रेंज से ये ऑरिजिनेट होता है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सतपुरा रेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब फेवरेट बोल सकते हो यूपीएससी का, क्योंकि सतपुरा रेंज से पहले भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स में, जैसे हमारे बुद्धिज्म या जैनिज्म को लेके ऑलमोस्ट आते हैं, विजयवाड़ा एम्पायर से आते हैं, वैसे सतपुरा रेंज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, आयुर्वेदा डे नेक्स्ट, ओके। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने के लिए 23 सितंबर को चूज किया है, ठीक है। तो सिंबल ऑफ द नेचुरल बैलेंस, नेचुरल बैलेंस, क्योंकि हमारी जो लाइफ को वो नेचुरली बैलेंस करने के लिए ये आयुर्वेदा डे शुरू हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी सारी आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स भी हैं इंडिया में, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा से भी लोग की बहुत सारी जो क्रॉनिकल डिजीज है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, एंड योगा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा ओनली, क्योंकि योगा हमारी लाइफ का डे टू डे का चीज़ है, वो आयुर्वेद से ही आया था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, तो
why these dates reflects the Ayurveda's focus on equilibrium of a body, mind and spirit. I told you, body, mind and spirit. That's why 23rd of September को choose किया गया है. Ayurveda means आयु is a life and Veda means a knowledge. तो अगर तुम्हारी मतलब बॉडी का बैलेंस ठीक होगा तो यू कैन मतलब अब्सॉर्ब द नॉलेज मोर, आप अपनी जिंदगी को भी बहुत अच्छे से क्या मतलब चला सकते हो. दैट्स वाई. ठीक है, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, सिंस पास्ट 10 years ओके देयर योगा डे, मेडिटेशन डे, आयुर्वेदा डे. ठीक है, बिकॉज ये सब हमारी जो एंसेस्ट्रल चीज है उसको वापस मतलब लाया जा रहा है या वापस उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो हमारी लाइफ की जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो काफी ज्यादा खराब हो गई है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं. तो दैट्स वाई दिस थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर किसी ना किसी को तो स्टेप लेना होगा. तो गवर्नमेंट अगर मान लो 100 पीपल है, गवर्नमेंट के इस स्टेप से अगर 20 पीपल्स की भी लाइफ अच्छी होती है तो दैट इज अ गुड शाइन. तो दैट्स वाई. तो जो भी इंडिजीनियस चीजें हैं ना, जैसे योगा को फॉरेन कंट्रीज क्लेम किए थे कि ये हमारा है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बोला नहीं ये हमारे है, और उन्होंने प्रूफ भी दिया उस चीज का. तो ये चीजें ना याद रखना कि कहाँ इंडिजीनियस जो चीज है उसको क्यों फिर से वापस ले आ जाए, क्योंकि जो हमारी वर्क लाइफ बैलेंस है, जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी जो बॉडी की इक्विलिब्रियम या सोसाइटी की वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको बाउंस बैक. ये ऐसे में इंटरव्यू में एंड जीएस का क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का. डिविजन्स नारा आयुर्वेदा, सत्वा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एंड द नेचर. ओके, ये तीनों चीज, नारा आयुर्वेदा मीन्स ह्यूमन हेल्थ. Okay, Sattva Ayurveda means animal health. Okay, Ayurveda means plant health, and nature means a holistic system of including lifestyle, hygiene, spiritual growth. Components, preventives. Okay, lifestyle, hygiene मैंने पहले भी बोला. Curative is a herbs diet. Okay, personalized treatment based on the prakrit and doshas. And legal recognitions, Indian Medical Council Act 1971. प्लीज इसको याद रखना. ओके ओके, एक चीज ये वाता, पित्त एंड कप्पा. ठीक है, हमारी बॉडी का, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करता है. मॉर्निंग में हमारी बॉडी वाता, उसके बाद पित्त एंड देन कपा. ठीक है, शाम के बाद क्यों खाना खाने से मना करता है, क्योंकि तब हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मतलब सन डाउन होता है तो हमें बॉडी की भी बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है. इसीलिए ये तीनों चीजें के थ्रू हमारी फूड की हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स भी ये क्यों बोलते हैं कि सुबह मतलब सूर्य उगने से खाओ एंड 6-7 बजे तक स्टॉप ईटिंग. ठीक है, क्योंकि इस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करना होता है इस वजह से. देन रसतु शुक्रा. ओके, रसतु शुक्रा इज अ दस्तु. ओके, मालास इज अ फेकस, यूरिन एंड अ स्वेट. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम लोग स्वेट करते हैं या हमारी यूरिनेट अच्छे से होती है तो हमारी बॉडी का जो बैड टॉक्सिक है, हाँ टॉक्सिन वो निकलती है. तो दैट्स वाई अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हुई, बहुत लोगों को स्वेट नहीं होता, बहुत लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उसके साथ बहुत सारी चीजें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो इसकी वजह से भी ये हेल्थ बैलेंस एंड डिजीज इम्बैलेंस, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए एंड डिजीज को इम्बैलेंस या कैटर करने के लिए ये जो मतलब आयुर्वेदा डे वो है उसको शुरू किया जा रहा है. मे बी अवेयरनेस क्रिएट हो तो लोग थोड़ा सा और जागे. ठीक है, चीज़ों को अपने लाइफ में ठीक करें. जैसे मैं बोलती हूँ इतने ज़्यादा प्रेशर होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, इतना सारा सब्जेक्ट है, इतने घंटे पढ़ना होता है, स्टिल यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. मेडिटेशन करो, मैंने पहले दिन आके बोला था, थोड़ा सा योगा करो या मतलब वॉक करने जाओ, वो अपने लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी की अगर क्लिनजिंग नहीं होगी तो हम न्यू चीजें सीख नहीं पाएंगे. वन मोर थिंग इज कि अगर प्रोडक्टिव चीजें नहीं पढ़ेंगे, जैसे देयर आर एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ पिक जितना जरूरत है एग्जामिनेशन के लिए. अगर हम लोग बहुत ज्यादा चीजें पिक करेंगे, बहुत ज्यादा चीजों को एक्यूरेट, तो बाकी के जो प्रोडक्टिव चीज है वो भूल जाएंगे. तो इसीलिए स्पेसिफिक होने की भी जरूरत है, जिसके लिए हमारी बॉडी का और माइंड का बैलेंस होना भी जरूरी है. Afrikaners, okay, Africans white tribe.
ये एक सडनली हिंदू में ये न्यूज आया था, ठीक है, कि हु आर द अफ्रीकनर्स, ओके, वाइट एथनिक ग्रुप नेटिव टू द साउथ अफ्रीका सिंस 1652, ओके, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अफ्रीकान्स जनरली अफ्रीका को डिनोट करते ही वहां पे लगता है कि ब्लैक पीपल, ठीक है, वो एक दिमाग में या रेसिज्म के बारे में दिमाग पे एकदम क्लिक करता है, बट ये चीज नहीं है, ठीक है, ये हमारी केस स्टडीज में भी आ सकती है। दिस आर वाइट एथनिक पीपल नेटिव टू द साउथ अफ्रीका। उससे पहले वो लोग ओरिजिनेटेड, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ओरिजिन कहाँ से आए थे, 1965 से पहले, सॉरी 1652 से पहले भी तो दे वर एग्जिस्टेड ना, तो कहाँ से आए थे वो लोग, ठीक है, वो लोग डच सेटल्ड हो गए थे यहाँ पे, एंड फ्रेंच, ओके, ह्यूगोटॉन्स एंड जर्मन एंड एनस्लेव्ड पीपल इंडिया, इंडोनेशियन, अफ्रीका से जाके यहाँ पे सेटल हुए थे उस टाइम पे, तो दैट्स व्हाई इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ था, इंडिया, इंडोनेशियन, अफ्रीका से, ठीक है। और दे आर ऑल्सो फ्यू ऑफ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका, बट होता है ना कि मिक्स की वजह से दे आर बिकम वाइट, क्योंकि इंडिया एंड इंडोनेशिया से भी लोग गए थे वहां पे, तो इसीलिए कल्चरल फॉर्मेशंस emerged through the mixing with the indigenous क्वे, ठीक है, इंडिजीनियस क्वे बोल के एक इंडिजीनियस टाइप थी, उनके साथ मिक्स होके डेवलप्ड अफ्रीकानस लैंग्वेज, इनका एक अलग सा लैंग्वेज है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैल्विनियम्स, फ्रंटाइज लाइफस्टाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन सेल्फ रिलायंस। इनके इतना ही याद रखना कि कहाँ से ये लोग ओरिजिनेटेड हुए थे, इनका कुछ खुद के कल्चरल फॉर्मेशन है, ठीक है, ये लोग इंडिजीनियस मिक्सिंग हुए थे, कोई एक ट्राइब थी, उनके साथ मिक्स होके ये जो अफ्रीकनर्स हैं ये लोग आए थे, ठीक है, 1652 में, बस इतना ही। एंड इसको एज अ केस स्टडीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में आने का चांस बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल याद रखना। एक से हाँ, क्योंकि उनका जो कल्चरल फॉर्मेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था कैल्विनिज्म कल्चर से, उनका कोई कल्चर है इंडिजिनियस, उससे वो लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई हूँ एंड मुझे तेलुगु सीखना है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं किस लिए इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को आई नीड इट ना, एंड यहाँ के लोग ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, तो दैट्स व्हाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैल्विनिज्म एंड फ्रंटाइज लाइफस्टाइल, एंड उनके लाइफस्टाइल भी इनसे ओके टेक बोर्ड से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है, तो तब जाके तो जैसे बाहर से जब इंडियंस, इंडोनेशियन, अफ्रीकन साइड से किससे मिक्स हुआ, कोई से ना मिक्स हुआ, तो इसीलिए उनका जो इन्फ्लुएंस था दैट इज कैल्विनिज्म से मिक्स होके उनका जो कल्चर है वो जनरेट हुआ था। जैसे दो कल्चर मिक्स होके एक अलग कल्चर बनता है, तो जस्ट लाइक दैट। मेरा युवा भारत ये रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया है, ठीक है, तो दिस इज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बस इतना याद रखना कि कौन सा मिनिस्ट्री इसको प्रमोट करता है। टारगेटेड एज है 15 to 29 एंड 10 to 19 ईयर्स ऑफ द एडोलेसेंट प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें एक ग्रुप इतना है और एक ये है, ठीक है। पर्पस क्या है, एनेबल यूथ लेड डेवलपमेंट, एम्पावर यूथ एज अ एक्टिव नेशन बिल्डिंग के लिए, क्योंकि अभी वॉर के बाद भी हमें ये महसूस हुआ कि वी नीड टू, मतलब हमारी जो यूथ है उनको हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। अगर कोई क्राइसिस होता है तो मतलब दे शुड कैपेबल टू डिफेंड देमसेल्फ, तो इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। प्लेटफॉर्म पाइगिटल फिजिकल एंड डिजिटल होगा, ये mybharat.gov.in में ये जो प्रोग्राम है ये जो वो लॉन्च होगा, ठीक है। एक्टिविटीज जैसे वॉलंटियरिंग विद द पुलिस, ओके, ULB एंड मिनिस्ट्रीज, पुलिस एंड ULB एंड मिनिस्ट्रीज आर गोइंग टू वॉलंटियरिंग दिस प्रोग्राम,
ठीक है, और ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, इसका अभी ऑफलाइन कुछ मतलब कहीं होगा ये नहीं, बट ऑनलाइन इनको लॉन्च किया गया है। तो एंड एज ग्रुप इज 15 to 29 एंड 10 to 19 एंड मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जब युवा आएगा ना, तुम लोग वर्ड से ही ना मिनिस्ट्री को कैटर मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि इजी होता है। जैसे वुमेन्स आएगा तो या तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, या तो जैसे एडुकेशन हुआ तो वुमेन्स के एडुकेशन, या तो एडुकेशन मिनिस्ट्री या तो वुमेन्स एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जब नाम हो उसके साथ ना मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं ये होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि साइंस कोई मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स है या कुछ भी है, उसका कोई प्रोग्राम है, उसको उसकी मिनिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वो मिनिस्ट्री में भी होता है साइंस एंड टेक से, में भी होता है दूसरे से, तो दैट्स वाई। बट जो इजी होता है उसको याद रखना मतलब इजी होता है रिमेंबर करना, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीक बता चुकी हूँ। रामप्पा टेम्पल का जस्ट इतना याद रखना कि लोकेशंस क्या है। तेलंगाना, बिल्ड कब हुआ है 1213 AD अंडर द ककतिया रूलर, ओके, गणपति देव, ककतिया रूलर। ये दो चीज ईयर याद रखने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। कहाँ वो है तेलंगाना, ठीक है। एंड अर्थक्वेक प्रूवन ब्रिक्स मिला है वहां पे, ठीक है, रिसेंटली लास्ट ईयर की ही बात है ये, 2024 एंड में वहां पे अर्थक्वेक प्रूवन इस तरह से बिल्ड हुआ था ये टेम्पल कि वो अर्थक्वेक को कैटर कर सकता था, दैट्स वाई, ठीक है। इसीलिए इसका इतना ज्यादा यूनेस्को ने टैग दिया था उसको, लिस्टेड 2021 में कि ककतिया रुद्र स्वेरा रामप्पा टेम्पल, इन्होंने इनको इसमें लिस्टेड किया था, ओके। यूनेस्को ने टैग दिया था इसको ककतिया रुद्र स्वेरा टेम्पल, इन्होंने रामप्पा टेम्पल को ये नाम भी दिया गया था बाय द यूनेस्को, ठीक है। सैंडबॉक्स टेक्निक यूज किया गया था उस टाइम पे। ये मे भी ना आए कि फीचर्स पूछ के टेम्पल का नाम पूछे, बट स्टिल याद रखना कि अर्थक्वेक प्रूवन ब्रिक्स, इससे याद रखना कि रामप्पा टेम्पल फर्स्टली एंड सेकेंडली सैंडबॉक्स टेक्निक्स यूज किया गया था। कलेश्वरा टेम्पल रिसेंटली अच्छा, रामप्पा टेम्पल न्यूज में क्यों था याद है ना, क्योंकि जो मिस यूनिवर्स अभी विजिट किए वो सबसे पहले आके वहां पे विजिट किए थे, दैट्स वाई सबसे पहले वो न्यूज पे था। कलेश्वरा टेम्पल में अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के मिनिस्टर हैं वहाँ पे पूजा करने गए थे एंड कुछ फंक्शंस ऑकर हुआ था, दैट्स वाई दैट वाज इनटू द न्यूज, ओके। लोकेशन इज बागोली, कर्नाटका, देवनगिरी, बस इतना याद रखना। देवनगिरी नहीं भी याद रखोगे तो बगली, ओके, कर्नाटका में, ठीक है। बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटास, ओके, एंड चालुक्यास। राष्ट्रकूटा एंड चालुक्यास के द्वारा बिल्ड किया गया था 10th सेंचुरी में, ठीक है। डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, ओके। देन आर्किटेक्चर्स क्या था, सेंट्रम था, ठीक है, वेस्टिबुल्स, ओके। उसके अलावा चोला स्टाइल शिखारास देखा गया था, क्योंकि एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा ने बिल्ड किया है, फिर भी यहाँ पे चोला स्टाइल शिखारा देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये कर सकता है कि फीचर्स दिया और उसके बाद वहां पे पूछा कि बिल्डेड बाय द राष्ट्रकूटा, चालुक्य या चोलास, तो ऑटोमेटिकली लोग चोलास पे टिक कर सकते हैं। दैट इज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि नहीं, राष्ट्रकूटा एंड चालुक्य, क्योंकि उन्होंने चोला की स्टाइल को में भी रेप्लिकेट किया था, तो इसीलिए तो ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो प्रीलिम्स यूपीएससी में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे ट्रिक्स ना मतलब याद रखना कि क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे इस तरह से, ठीक है। एंड दिस इज अ वन वर्ड टाइप कि आता है तो टिक कर पाओगी, अगर नहीं आता है तो नहीं गेस कर पाओगी। Heritage structure is prospected by the आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हेरिटेज स्टेटस तो यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और कुछ एक सेकेंड, PSLV C61, ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन फेल हो गया, मैंने 2 दिन पहले इसको बोला है, ठीक है। PSLV क्या इंडियन ट्रस्टेड 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। स्टेज 1 PSLV 1 सॉलिड है, PSLV 2 लिक्विड है, PSLV 3 लिक्विड है, PSLV 4 लिक्विड है, ठीक है। ये पहले अगर मैं बोलती 5 to 6 years बैक तो ये PSLV के ये स्टेजेस पूछा जाता, अब नहीं पूछेंगे। यूज्ड इन किस में यूज हुआ था, ठीक है। PSLV वो चंद्रयान 1, ठीक है, मंगलयान में यूज हुआ है,
ठीक है. देन US अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 सी बैंड है. दो एक चीज बताती हूँ, क्योंकि ये फेल हो गया है, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, बहुत. क्योंकि कोई अगर चीज बिल अगर नहीं अभी तक एसेंट हुआ है प्रेसिडेंट से और उसको लागू नहीं किया गया, जैसे वैसी चीज नहीं पूछा जाती है यूपीएससी में, वैसे ही अगर फेल हो गया ये मिशन और लॉन्च होते ही, तो होपफुली ये पूछा नहीं जाएगा. तो अननेसेसरी इसके फीचर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑल वेदर अर्थ इमेजिन लेने वाले थे, ये सबको पता है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न था. जहां जहां पे सबसे ज्यादा इमेज लेने में प्रॉब्लम है, अगर बहुत बारिश हो रही है, अर्थक्वेक हो गया, तब ये सैटेलाइट्स प्रॉपर अच्छे से काम करे और हमें उसकी इमेजेस भेजे. तो दैट्स व्हाई इसको लॉन्च किया गया था. बट इसके फीचर्स सेम है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हाइड्रोलॉजी एंड डिफेंस, एंड ऊपर से एग्रीकल्चर के लिए भी, जैसे कहीं पे अगर क्लाइमेट कोई डिजास्टर हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर को भी मॉनिटर करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया था. बट स्टिल ठीक है, ये याद रखने की जरूरत इतना नहीं है, बस इतना कि PSLV C61 की कौन से मिशन था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सरफेस 09, बस इतना याद रखना. दैट्स इट. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया. ठीक है. 178 मेंबर्स हैं. ऑटोनॉमस बॉडी है, UN एजेंसी का. ठीक है. पीसफुली न्यूक्लियर यूज, सेफ गार्ड्स एंड इंस्पेक्शंस करता है. ठीक है. पीसफुली न्यूक्लियर यूज को मॉनिटर करता है, सेफ गार्ड करता है, इंस्पेक्शन करता है और रोकता भी है कि यहाँ पे ये चीज हो सकता है और ये चीज, लोगों के ऊपर सैंक्शन भी बिठाता है. तो दैट्स व्हाई. ठीक है. स्ट्रक्चर यह है कि जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, पॉलिसी अप्रूवल, बोर्ड ऑफ द गवर्नर, ओके, देन सेक्रेटरीट, ओके, डेली opponents and functions is safeguards, nuclear safety, then emergency response and cooperations. सबसे मेन बात इसका ये याद रखना, क्या काम करता है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया मेंबर्स है कि नहीं, इंडिया का वोटिंग पावर है कि नहीं, वियना हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया, एंड ये याद रखने की जरूरत नहीं है. 178 मेंबर्स, कोई नहीं कहीं पे भी पूछेगा. ठीक है. दैट्स इट. पीसफुल, बस इतना ही, इसके और कुछ है नहीं. ओके. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लास्ट वीक सैटरडे या फ्राइडे को आया था ना, कि पाकिस्तान को फिर से उन्होंने पैसे दिए. तो दैट्स व्हाई इनका क्या रोल है ये जानना जरूरी है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, कि अगर मेंस का ये क्वेश्चन है, सडनली मुझे याद आया कि दे आर मिसयूजिंग देयर पावर और दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका अगर क्रिटिकली एनालाइज आती है तो एक बैलेंस स्टेटमेंट होने की जरूरत है. ठीक है. कि यहाँ या ना में भी, और जहाँ पे क्रिटिकली में इनको चैलेंजेस किया जाएगा कि यस दे आर मिसयूजिंग देयर पावर, ओके, तो वहाँ पे आप लोग ये पाकिस्तान वाला बात लिख सकते हो एकदम इजीली, क्योंकि जब पूरी वर्ल्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि IMF उनको फंड करेंगे, तब उन्होंने उनको फंड कर दिया. ठीक है. सो दैट्स व्हाई. एंड मेंस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आ सकता है अगर डायरेक्ट आया इससे, तो ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही होगा, क्रिटिकली एनालाइज द IMF. तो अदरवाइज ठीक है. रिसेंट न्यूज इज 1 बिलियन लोन मैंने बोला पाकिस्तान को दिया गया है. ठीक है. फॉर्म्ड 1944. ठीक है. बेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये फॉर्म हुआ था. ठीक है. देन वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज, फॉर्म्ड एंड हेडक्वार्टर. ठीक है. फंक्शन, फॉर्म्ड एंड हेडक्वार्टर में एक चीज, उस दिन भी मैंने ये चीज कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, फॉर्म्ड हुआ था, और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले. ये अगर याद रहेगा तो 1944 याद रह जाएगी. ठीक है. फंक्शंस, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल हेड के लिए, इकोनॉमिक एडवाइस के लिए, एंड टेक्निकल हेड्स के लिए. और ऊपर से कहीं किसी अगर कंट्री में अर्थक्वेक होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको कैटर उसके लिए भी, जैसे कहीं पे वॉर भी हो रहा है. ठीक है. जैसे पाकिस्तान को उन्होंने फंड कर दिया, उन्होंने यूक्रेन को भी किया था. ठीक है. तो इस तरह से मेंबरशिप 190 कंट्रीज जब शुरू हुआ था. हाँ ठीक है. मेंबरशिप 190 कंट्रीज है. वोटिंग पावर बेस्ड ऑन द कोटा. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर इज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ओके, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एंड जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड. एक बार रिपीट करें. हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ. और कब बना था?
एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बना था, किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू? बस ये बेसिक चीजें याद रखना, क्योंकि फंडिंग फीचर्स तो इसका सबको ही ठीक है. अगेन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये मैंने फिर से इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि दिस इज अ इंडिजीनियस मिसाइल एंड स्क्रैप से बना है. ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है. शॉर्ट रेंज है. इसके अलावा आर्मेनिया को हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया है, रिसेंटली ऑफर यूएई को किया है. उन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बुक किया है इसको लेने के लिए, ठीक है. एंड इसी वजह से ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि जो स्क्रैप से बनाई हुई एक मिसाइल इतनी अच्छी हो सकती है. टाइप शॉर्ट रेंज बाय DRDO, इंट्रोड्यूस्ड इन 2014-15, ठीक है. रेंज है इतना 4.5 to 25 किलोमीटर. ओके, एल्टीट्यूड है 100 मीटर्स टू 20 किलोमीटर्स. टारगेट है एयरक्राफ्ट, ओके, UAV, हेलीकॉप्टर्स. गाइडेंस इज अ कमांड गाइडेंस, मतलब कमांड देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे खुद से नहीं चला जाएगा. एंड रैडर का नाम है राजेंद्र रैडर, CD पीसा, ठीक है. ये याद रखना प्लीज, ये याद रखना फर्स्ट, ये याद रखना, ठीक है. ये पूछेगा नहीं, ठीक है. ये दोनों भी टारगेट पूछ सकता है, एयरक्राफ्ट, UAV एंड हेलीकॉप्टर, ये याद रखना. दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है. बाकी अगर लास्ट वीक का कुछ भी एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, ओके सॉरी, माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, ये दोनों पॉइंट क्योंकि मेंस प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को मैं सैटरडे को साथ में उसका PPT बना के, क्या मेंस का क्वेश्चन इसके थ्रू आ सकता है, कैसे उस क्वेश्चन को कैटर करोगे, उसके मतलब इंपॉर्टेंस क्या, डेटा है, क्या फेस कर रहा है, वो दोनों को साथ में कराऊंगी कि माल न्यूट्रिशन भी है एंड ओबेसिटी भी है, ठीक है. तो अगर ये दोनों प्रोस्पेक्टिव या कंबाइंड कोई माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी पे क्वेश्चंस आती है, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखोगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर सेम अगर नहीं पूछा, दोनों को पूछा, तो उसका स्टार्टिंग कैसे होगा, उसका एंडिंग कैसे होगा, पूरे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करोगे. तो मैं एक दो क्वेश्चंस भी बना के लाऊंगी एंड देन उसके साथ मैं एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू. बाकी आप लोग का क्लास है शायद ना 6 o'clock से. हाँ.